Hi everybody, welcome to your Legal Buddy. So till now we have looked into various aspects of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, that is the new CRPC. And as we know, from 1st of July 2024, the new criminal laws will come into force in the entire country, including Jammu and Kashmir. Okay? So pursuant to achieving all the knowledge that is given in these bare acts, so I've decided to teach all these three new criminal laws. So till now we have covered some important aspects of Bharatiya Nyaya Sanhita. I have made a playlist, you can check out there. And currently we are studying Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, that is a new CRPC. So today we will be looking into section 230. इसके पहले के sections we have studied, ठीक है ना? तो section 230 देखते हैं क्या कहता है. Supply to accused the copy of police report and other documents. ठीक है? Section 230 कहता है, ठीक है? What it says? In any case where the proceeding has been instituted on a police report. Now we all know the proceedings, yeah, criminal proceeding can be instituted by three ways. First is you go file an FIR with the police, second is you go file a complaint to a magistrate, and third is the court suo motu takes an cognizance on that particular offense. ठीक है, तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं जब पुलिस रिपोर्ट हुई, FIR हुई, ठीक. तो in any case where the proceeding has been instituted on a police report, magistrate shall without delay and in no case beyond 14 days from the date of production or appearance of the accused furnish to the accused and the victim free of cost the copy of each of the following. Now इसमें important चीज ये है, the word here 14 days लिखा है, ठीक है. तो once the accused has been brought before the magistrate, ठीक है, समन चला गया, समन करके he has been brought before the court, ठीक है, and now जिस दिन बुलाया गया उससे 14 days के अंदर अंदर magistrate has to make sure that he supplies all the police reports and every document to both accused and the victim. ठीक. और क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे, इंपॉर्टेंट है. पहली पुलिस रिपोर्ट देनी होगी, ठीक है, जो FIR वगैरह हुई, ठीक है, वो सब प्रोवाइड करना होगा, ठीक है. स्टेटमेंट्स ऑफ 161 प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये सब प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है. FIR, ये देखिए FIR एज रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 173, ठीक. द स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 180 of all persons whom the prosecution proposes to examine as witnesses, ठीक है, excluding therefrom any part in regard to which request of such exclusion has been made by police. ठीक. अब ये देखिए जो भी विटनेस है वो अपना बयान देते हैं, they all give their statements in front of the police. So what police can request the magistrate, it can say that this particular statements are requested from the magistrate that it should not be provided to the accused, ठीक है. पुलिस हैज दिस डिस्क्रिशन कि वो ऐसा रिक्वेस्ट करे, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी जज ऑल्सो हैज अ डिस्क्रिशन कि वो इसको ऐसा मान ले और वो कुछ पार्ट स्टेटमेंट्स के ना प्रोवाइड करे जाए, ठीक है. इंपॉर्टेंट है ये चीज. फोर्थ, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, द कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स इफ एनी, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस कि पुलिस के सामने कौन से स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं. तो वो सब जो कन्फेशन हुए वो सब स्टेटमेंट्स, दीज स्टेटमेंट्स आर प्रोवाइडेड टू द अक्यूज्ड एंड द विक्टिम बोथ. Any other document or relevant extract thereof forwarded to the magistrate with the police report under section 6 of 193, ठीक है. अब बस इसमें ये कहता है कि सेक्शन 6 ऑफ 193 इसमें ये है कि जो भी कुछ भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, दोज ऑल डॉक्यूमेंट्स हैज टू बी प्रोवाइडेड टू द अक्यूज्ड एंड द विक्टिम, ठीक है. द वर्ड इंपॉर्टेंट हियर इज 14 days. आगे पढ़ते हैं. Provided that the magistrate may, after perusing any such part of a statement as is referred to in clause 3, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे ना कि कौन से पार्ट को नहीं देना है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है. प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट में आफ्टर परयूजिंग एनी सच पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट एज इज रेफर्ड इन क्लॉज 3 एंड कंसिडरिंग द स्टेटमेंट्स गिवन बाय द पुलिस ऑफिसर फॉर द रिक्वेस्ट डायरेक्ट दैट अ कॉपी ऑफ दैट पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ सच पोर्शन देयरऑफ एज द मजिस्ट्रेट थिंक्स प्रॉपर शैल बी फर्निश्ड टू द अक्यूज्ड, ठीक है. अब कह रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में देयर आर 4 पर्टिकुलर पेजेस, ठीक है, तो द पुलिस इज रिक्वेस्टिंग एंड आफ्टर गिविंग ड्यू रीजंस इट इज रिक्वेस्टिंग द मजिस्ट्रेट कि भाई इसके पहले 2 पेजेस दे दें, डोंट प्रोवाइड द लास्ट 2 पेजेस, ठीक है. तो ऐसा भी कर सकता है, मजिस्ट्रेट कैन रिकॉर्ड दिस रीजन एंड प्रोवाइड ओनली फर्स्ट 2 पेजेस. प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट सच डॉक्यूमेंट इज वॉल्यूमिनस मतलब बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट है, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो डॉक्यूमेंट है बहुत ही ज्यादा भारी है, बहुत सारे पेजेस हैं, he shall instead of furnishing the accused and the victim with copy thereof may furnish the copies through electronic means or direct that he will only be allowed to inspect it either personally or through an advocate in court. Now very very important, this was not earlier in CRPC, ठीक है.
अगर डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा हैं तो मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिप्शन है कि उन डॉक्यूमेंट्स को आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से पहुंचा दें अक्यूज तक। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम वी ऑल नो, व्हाट्सएप, ईमेल, ठीक है, उन सब मीडियम से पहुंचा दिए जाएं। एंड ही कैन ऑल्सो पुट फोर्थ द कंडीशन कि ये जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे दीज डॉक्यूमेंट्स कैन विल ओनली बी सीन, इंस्पेक्टेड ओनली इन फ्रंट ऑफ द जज, ठीक है, इन द कोर्ट, ठीक है, प्रॉब्ली इन द कोर्ट वर्ड लिखा है, नॉट इन फ्रंट ऑफ द जज बट इन कोर्ट लिखा है। क्या है कि जो डॉक्यूमेंट्स अगर वॉल्यूमनेस है तो उनको इलेक्ट्रॉनिकली दे दिया गया है और उनको इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट मतलब पर्सनली आप उसको ऊपर ही ऊपर देख लेते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स आए कि नहीं, ठीक, ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन इनसाइड द कोर्ट रूम। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म शैल बी कंसिडर्ड एज ड्यूली फर्निश्ड, ठीक, और ये माना जाएगा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे गए हैं तो माना जाएगा कि यू हैव बीन गिवन ऑल द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। पहले नहीं था ये, अब ये आया है। इन द अर्लियर सीआरपीसी वी डिड नॉट फाइंड ऑल दिस, ठीक है, इसको आ गया है सेक्शन 231 ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू एन अक्यूज्ड इन अदर केसेस ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, वेयर इन केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट का मतलब हो गया है कि कंप्लेंट केस, इफ यू गो फाइल अप कंप्लेंट टू अ मजिस्ट्रेट तब किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। इट अपीयर्स टू द मजिस्ट्रेट इशूइंग प्रोसेस अंडर सेक्शन 227, ठीक है, वी हैव सीन दैट हम लोग अक्यूज को और विटनेसेस को एग्जामिन करते हैं, मजिस्ट्रेट एग्जामिन्स द विटनेस, एग्जामिन्स द अक्यूज, ठीक है, इन सबको ओथ पे एग्जामिन करता है। Then after being satisfied that prima facie case has been made out, ठीक है, he issues summons या he issues process to the real victim, accused, I beg your pardon, he issues process to the accused कि आप कोर्ट आइए, ठीक है। अब कहता है कि it appears to the magistrate issuing process on 227 that offense is tribal exclusively by court of session, the magistrate shall forthwith furnish to the accused free of cost a copy of each of the following, ठीक। अब मजिस्ट्रेट को लगता है कि एग्जामिन करने के बाद ही on his own satisfaction he is satisfied, he is very satisfied that this particular case is triable by court of session, ठीक है। जब उसने एग्जामिन करा पता चला अरे तो सिर्फ मारपीट का केस नहीं है, दिस इज अ केस ऑफ हॉट ब्लडेड मर्डर, ठीक है, तो कोर्ट ऑफ सेशन देखेगा, ठीक है। तो जब उसको पता चला कि कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायबल है, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायबल भेजने के पहले ट्रायल के लिए भेजने के पहले ही हैज टू सप्लाई द डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट सप्लाई करने का जो ड्यूटी है दैट इज ऑफ मजिस्ट्रेट, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे, वही सारे डॉक्यूमेंट्स जो ऊपर प्रोवाइड करेंगे अपार्ट फ्रॉम पुलिस रिपोर्ट और एफआईआर, क्योंकि वो तो हो ही नहीं है, ठीक है। मजिस्ट्रेट के साथ जो कॉपी आई वो सब दिए जाएंगे, स्टेटमेंट कन्फेशन जो है वो सब दिए जाएंगे, और जो डॉक्यूमेंट्स जो प्रोसिक्यूशन ने उसके सामने रखे हैं वो सब दिए जाएंगे, ठीक। प्रोवाइडेड दैट इफ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट सच डॉक्यूमेंट इज वॉल्यूमिनस, यहाँ पे भी वही है कि अगर वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट्स हैं देन दोज डॉक्यूमेंट्स कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, ठीक है, और जिसको भी प्रोवाइड करे जाएंगे ही हैज टू कंफर्म बीइंग इन द इनसाइड कोर्ट कि उसको डॉक्यूमेंट जो चाहिए थे वो मिल गए, ठीक है। तो ये था सेक्शन 231 एंड दिस वाज सेक्शन 230। आई होप आई वाज एबल टू मेक सम पॉइंट्स वेरी वेरी क्लियर कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। So thank you for watching and have a good day ahead.